credited, sir. So we don't know how to solve this issue. We sent mail, and also we have been part of the Twitter campaign, but all these things. But I don't think that this will be going to much impact. We have to go for any giving news in the national media, or the physical protest. That kind of thing may be creating huge impact than going for this Twitter. That's good, but along with that we have to find any other impactful solution, that I think, sir. Yeah, right. Thank you, sir. So one by one speak, and then we will conclude. And how can we initiate? So please come and speak your word and your creative idea. How can we initiate our issue impactfully? Hello, am I audible, sir? Yes. Yeah. My name is Prem Kumar Chetri, and I am pursuing my PhD from Mizoram University, which is located in the northeast part of India. So, I have the same problem as stated by my previous speaker. Uh, all the monies are generated when I check website. All the monies are generated and already approved also for December's, but it is yet to be credited to the account. And the problem is that the virtually we are trying to create an impact, but we can't able to able to create the impactful situations, so that our problem gets attentions. So we need to do sort of, I mean, if possible, I mean, physical kind of protest so as to draw the national attentions. For the last couple of days we have been trying virtually, which seems to be not creating that impactful situation as stated by the previous speaker as well. So that's what actually I feel the problem is. I think that's what the way we can go. That's all, sir. Yeah, definitely. We will think about how can we initiate impactfully. So that's why we are here and we call a meeting. Even you can see only the 17 people join this meeting. So that is also bad impact for us. So please, one by one, say. Hello, sir. I'm Ajit Kumar Sahu from Barampur University, that is from Odisha. I also agree from my previous speaker, that is we have to impact that is physical form. We have tried the Twitter account and all the email, but doesn't work, I think. So we have to do some physical activities like interact with media persons, and other things like we have to do approach as you mentioned in the group. We have approached the MP for questionnaires. Let's see. Let's try in the physical form, and we have to do some physical activities like we have to protest. As I agree with my previous speakers. Thank you, sir. Hmm. Please, it's open platform to speak your word. What do you think? How can make the success? How can get our fellowship? So please give some idea and please say what your word. What do you think? And how long you are struggling? How long you are not getting the fellowship? Just share your word and view. It's open platform. It's not bound to anyone. Myself, Hi. Mukesh. Hello. Okay. Mukesh, you Yes, can speak. You yes, can speak. Mukesh, continue. Yes, myself, Mukesh, pursuing PhD under Mohanlal Sukhadiya University, Rajasthan. My fellowship is pending from June 2024. And I want to say that we are meet to PM or Amit Shah and discuss our issue. Without doing protest, I think we meet some ministry. That should help it. If we do protest, then they should take negative effect, and they make more issues like dismemberment of fellowship. So my idea is that we met either PM or Amit Shah. That should they solve out.
issue. Yeah, right. Thank you. We will do it. Definitely we will conclude everything. So please put forward your idea and issues and everything. Yes, sir. Thank you. Because we do protect, then we I think not able to too much support. If we direct Yeah. made to PM or Amit Shah, it should be solved because ministry is doing some caste discriminations like NF, SC, NF, ST are continually getting fellowship, but NF OBC is every time it's going to delay. So this is I think caste discrimination is happening. Hmm. Okay, sir. Thank you, sir. Myself, Nishat. I am from Kerala. I am doing my PhD at Mahatma Gandhi University, Kerala itself. So I am December 2023 batch. From the initiation of my NFOBC fellowship, we have been facing this issue. So from the start itself, including me and others in December 2023 batch, have been raising their voices and have been going behind this fellowship. At that time, the budget was actually there for giving the fellowships. Even then, we were getting quarterly fellowships, but not on time. Like quarterly basis, the fellowships were given, but even quarterly, 2 or 3 months, 2 months may be given, but not fully. Now the issue is that in the last budget meeting, the budget allocated for this fellowship was very less, and all the funds have been exhausted already. So I got my last fellowship in June 2024. So again, the issue, and as AARSA already pointed out, the participation in this our group activities are very low from the researchers part. So it's the major issue here. Other fellowships have been given on time only because the researchers are all together. And yes, there is caste discrimination, but I actually don't know. I have been doing this Twitter campaigns, email campaigns, and we have been filing RTIs. We have been filing this complaints to this tribunals and all, but we haven't been getting any positive responses on regularization of this fellowship. So at this point, I don't have anything to say other than physical protests. I strongly disagree from the previous speaker. I don't think the physical protest will have a negative effect. Thank you. Hello, am I audible? Yeah, yeah. Yes, Kajal, Yes, please. yes, Kajal, you are audible. So basically, this is me, Kajal. I am doing my PhD from one of the prestigious university, that is Jawaharlal Nehru University, from Center of Historical Studies. And I'm in my second year of PhD. I cleared the NFOBC fellowship in the month of December 2023, which was like applicable from January 2024. So I have not received it even once. I have mailed them like quite a few times. They reply that let us have the funds, we don't have funds and everything. And to be honest, I am the sole earner in my family, so either I leave my PhD and do a private job, or I just like I have to take care of my family, just not about me only, but yeah, the scholarship is not coming. And even the mailing thing, the meeting, giving them the list of demands and everything, I don't think they are working. If these are working, the scholarship would have come. Secondly, I'm noticing that there is a huge discrimination between the JRF people and between JRF people and NFOBC people. Secondly, there is this another caste discrimination, the NFSC and NFST people. So I think this discrimination is by like both sides, from JRF to NFSC and ST. And I'm seeing that most of my friends who have this NFSC scheme, they're getting the scholarship on perfectly on time. Same with the JRF also. But it's just who like us who are struggling. Like I believe if this scholarship is going to be like this, why is it in the option only? If it's not there, we will like I mean, like, I'm not getting any benefit of it.
like it's not beneficial. I'm mailing them and they're replying the same key. There is no fund, there is no fund, and this is how, like, I feel that there is something, if not protest, but I think there is something needed to be done in person or like physical visit, a formal visit maybe, a formal, very peaceful meeting with the ministry. I think that will help, if not protest. But yes, thank you. Yes, right. And one more thing I would like to say, could anyone note down all the issues who are speaking, and then after that we will make a plan and what we have discussed and how can take the initiative impactfully. So could anyone note down? So it will be good for our minutes of meeting. So please raise your hand who can do this one. So it will be helpful for us also for our issues. Okay, thank you. And please come uh, another participant who want to say anything. Oh, before that, I have to say something. Yeah. Can I? I'm just Yes, asking yes. if there is any, what will be the outcome of this? Like, why are we doing this meeting, Google Meet? And like, out of ignorance, out of like ignorance, I'm asking this that what is the Yeah, purpose? What do definitely. we do after? Yeah, definitely. That's good question. And that is because many scholars are facing such kind of problem. Not even the NFOVC, even other scholar also who are getting the fellowship. Still, when I was doing PhD from AIMS, and I also face such a kind of problem. So that time we have initiated the so many issue for the hike and fellowship like that, and since 2014, 2018, 2023. So just I want to give the brief, and that time we felt there is no organization in India to raise the issue for the betterment of research scholar. Even there is so much insecurity also among our research scholar. If they want to raise the issue, then our PI and some other things they all also want to see why we are involving such kind of activity. Even still, we are facing the issue also problem financially. So at least we can raise the voice and before the ministry, before the funding agency on through the our association. So maybe the government, even before government listen to our word and voice, and even before 2 3 months, NF MANF Maulana Azad National Fellowship, they are a scholar also facing same problem. Even still we have raised the issue around the 25 days, around the only maybe the 1 month also. So that time then the ministry and everybody have listened our voice and then they have released the fellowship. So can you repeat the one question? Can you repeat the question also if you have some doubt and also? No, So I don't that's have why any and doubt. I just, yeah. yeah, listen. Okay, sorry. Even one person contact with us, and we are raising such kind of issue. We are not getting the fellowship, and they have sent the email to air staff. Then that time we contact with him. What the exact issue? Why you are raising issue? Then that scholar said, uh, we have the one group, and we would like to connect with you all. And if you will raise the issue also, so it will be helpful to all the scholars. Maybe the government will listen our voice and ministry, so it will be easy. So that's why we are called, because we are connecting through the Twitter, but we are not active for our voice. Still, could you imagine how many people are joined this meeting? Still, we are raising issue for I think there your, are around 30 plus people. Yeah. yeah. So that is our lacking. Still, we need the Mm. fellowship, but we are don't want to come in together Yeah, and that's to the raise the problem, I voice. think. Yeah, there is this Yeah. problem of allocating people, Yeah. So mobilization of people. They don't want to come in front. we will come on this Even if word also. we, yeah, I think if we, even if we arrange a protest, I don't think there will be so many people joining it. No, But I just am we are always going ready for for the it. If there is any Kajal, formal meeting, Kajal. please,
Yes. Rajal, we are just doing only thinking the protest. Before that, we will discuss how can make step by step to raise the voice. There are so many ideas, so many things we can, how can initiate our voice step by step. So that's why we will come in last. First, we want to listen you who are joining the meeting. That's why first we want to listen, then we will come. How can make the impactful initiative for our fellowship? Well, hello. Yeah, that Yes, was yes, so yes, kind Am of I? Pawan. you. Thank you. Yes. Am I audible? Yeah, Pawan. Uh, yes, yes. Uh, uh, I'm from Patna University. I'm doing PhD from 2020. देखिए हम लोग अभी तो जो बात हो रही है कि लोग मतलब कम हैं, चाहे जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं और ट्विटर कैंपेन पे नहीं आ रहे हैं। अभी तक का जो हम लोगों का आंकड़ा है, चूंकि मैं भी इससे पहले हम लोग मीटिंग लेते थे तो उसमें मैं ही होस्ट करता था और नमा भाई भी करते थे। तो इस समय का सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। जैसे अभी तक सबसे ज़्यादा लोग आए हैं, मतलब पहले जितने लोग आते थे, मतलब ये एक सिचुएशंस है और सिंपल सा वे यही है कि लड़ना होता है तो बहुत कम लोग ही लड़ते हैं, धीरे-धीरे लोग जुड़ते हैं, चले जाते हैं। कितने लोग आएँगे, जाएँगे ये मैटर नहीं करता। कितने लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली फाइट करना चाहते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। और इससे पहले नैन भाई हम और नमा भाई, ये हम लोगों ने ही इसको कई बार ट्विटर कैंपेन सीपी ग्राम वाले इशू पर, उसके बाद आरटीआई फाइल किया था, हम लोगों ने कई सारी चीज़ें की थी और रेगुलर हम लोग इसको करते आ रहे हैं। कई बार मैं एनबीसी एफडीसी गया भी था ऑफिस पे इसको लेकर के। तो ये सब रेगुलर हम लोग कर रहे हैं। अब इसको कंटिन्यूअस रखा जाए, होता ये है कि पेमेंट्स आते हैं, उसके बाद 1 से 2 महीने वो नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन का नेचर है भाई। पेमेंट आया तो अपना भाई अपना वो चलता है, जब तक खर्चा चलता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम वही क्रिएट हो जाती है। तो अब सबसे सीरियस सिचुएशन हमारे लिए ये है पैनिक वाला कि अ, इस देश के सबसे इंटेलेक्चुअल लोगों पवन में हम जी, लोग आते सर हैं। मेरा एक भी बार नहीं आया है। आई हैव नॉट रिसीव्ड इवन वंस, even for 1 month, so that I can like manage. You know, I'm doing it like I'm still in my second year of my PhD and I'm still like working on my synopsis and stuff. So I'm not getting time like for Pooja, studying Kajal, or doing anything I else. agree with you, and not I'm saying that you are in problem. Everyone are in situation that is panic situation. तो सब लोग फेस हम्म। कर रहे हैं, ये तो बात है, और ये बहुत हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। अब जी इसके जी। अगर वी आर नॉट गेटिंग फाइट कर रहे हैं हम लोग इसके खिलाफ, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है ना। तो सबसे बेहतर मतलब हम क्या बेस्ट कर सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पाले, क्योंकि इसके बगैर होना भी नहीं है। और जैसे एक वो लोग होते हैं, जैसे हर लेवल बटा हुआ है, सोसाइटी का अपना एक लेवल है, उस लेवल पे लोग बहुत नहीं जानकार होते हैं तो वो नहीं फाइट कर पाते। हम लोग इस लेवल पे हैं कि हम हर चीज कर सकते हैं, फिर भी हम लोग नहीं कर पाए। सर ये ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग करना ही नहीं चाहते। उन लोगों को लगता है कि सारी चीजें पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है, ये उनके नहीं नहीं, माइंडसेट में हो एक्चुअली सकता है। एक्चुअली हाँ जो हाँ। हमारा, मैं एक और ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने ये जो एसोसिएशन है, हम नहीं, ये जब हाइक एंड फेलोशिप का इशू आया था 2014-18 इन सब में, तो ऐसा हम कभी नहीं कहते कि हम कहते जितने भी स्कॉलर हैं उन सबका ये मानना था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। आज तक अभी तक जितने भी हमने इशू फाइट किए हैं और फाइट करने के कई तरीके अपनाए हैं, नॉट ओनली द प्रोटेस्ट एंड द इन पर्सन, वी ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम वी रेज द इशू इन सोशल मीडिया and contact with the concerned authority, and we have discussed in the meeting so many issues. So that's why I'm saying we should not think also कि everybody think caste discrimination, even caste discrimination, because why we are thinking, because we are from belong to OBC, that is fine, but our main concern is the fellowship. यस यस यस।
Right. Fellowship, we should talk the fellowship. Suppose Yes. another person, Maulana Azad, and like the AICT person, they are also facing the same situation. They are not saying that we are the caste discrimination. If we will talk about the caste discrimination, people will think about the political thing. So we should Yes. focus on our issue. We are demanding for our fellowship because we are pursuing the science. We are doing the research. If we are thinking on the if we are thinking on behalf of science and research, and in during our research we are facing such kind of issue that is important for us. Yes. Yes. No, you're right saying. So ये we बात should think. Yeah. So नहीं बिल्कुल हम लोगों को देखिए उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी इशू जोड़ा जा सकता है जब हम नहीं फेस कर रहे हैं जोड़ा भी नहीं जा सकता है बिकॉज ठीक है वो सबके मन में है बात कि जोड़ा जा सकता है ये कर सकते हैं बट हाउ कैन से कि दे आर डूइंग No, द no, कास्ट that is not main issue. That is Sir, not. OBC वो हम लोगों के लिए community is बहुत the मुद्दा नहीं less mobilized community. एक minute. है. Yes, I would like to. I think that OBC community, be it in the university or in the universally social context, I think OBCs are the less mobilized, less well connected to each other, and irrespective of the scholarship I'm talking right now. So because the Right. mobilization and that coordination is lacking there, and I think this might be one of the results of that lack of mobilization, because of which, like, I have seen that SC people have fought. I have seen that SC people have fought in here only from GNU only. There are people who fought for their scholarship and they got it. Right. I'm not saying that protest is the ultimate solution, but हमारा क्या है, हमको we need scholarship. अब वो चाहे जैसे मिले, without yes right protest या फिर formal meeting, yes, whatever. Right, so Kajan. You are dear, listen to me first one by one who want to say because we are talking in the different mode. So right now other can speak, others we should give the time to others also what they are thinking and how what we have the idea, then we will discuss, definitely we will discuss on this point. हेलो सर, मेरा नाम राधिका और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। जी जी मैं प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग से पीएचडी स्कॉलर हूँ। और सर मेरा जो स्कॉलरशिप लास्ट टाइम में आया था वो मई में आया था, उसके बाद अक्टूबर में आया था और मुझे कंटिजेंसी मिला था सिर्फ 2500 रुपीज़ मुझे। उसके बाद से अभी तक मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से, क्योंकि माइंडली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, हम प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं सही से, रिसर्च नहीं हो पा रही हमारी। हमको कहीं साइट पे जाना है अपने तो हम वहाँ नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है और हम कोई सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आ रही हैं प्रॉब्लम फंड नहीं मिलने की वजह से। और सर मतलब मेरा जो सजेशन है बाकी जो पहले स्पीकर जो बोल चुके हैं कि हमको फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहिए, शायद हमारी बातें सुनी जाए लोगों के बीच। नैन भाई आए हुए हैं। नैन भाई आपका स्वागत है, वेलकम। हम लोगों के फेलोशिप वाले इशू पे काफी इन्होंने वर्क किया हुआ है और आगे कर भी रहे हैं, तो वेलकम आपका। ठीक, थैंक यू पवन भाई। हाय नारायण। यस नारायण। यस नामदेव भाई भी आए हुए हैं, वेलकम नामदेव भाई। वो भी काफी हम लोग के यहाँ फेलोशिप वाले इशू पर काफी मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों का काफी हेल्प कर रहे हैं और वो तो साथ में है ही। ठीक, हाँ थैंक यू पवन भाई। यस बोलिए प्लीज। शायद मुझे लगता है कि नयन भाई हमें अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि अभी हमारी फाइल कौन सी प्रोसेस में है और आगे की स्टेप्स हम क्या कर सकते हैं। ये डिस्कशन नयन भाई के छोटे से वो स्टेटस के बाद ले सकते हैं हम। तो नयन भाई आप प्लीज गाइड कर सकते हैं क्या हमें? यस बिल्कुल। एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ फेलोशिप इज वर्सन नाउ,
ठीक है, फेलोशिप की जो स्थिति है वो अब दिन प्रतिदिन अब बिगड़ती ही जा रही है। जहां तक मैं खबर को इकट्ठा कर पा रहा हूँ और जो स्टेटस को एक्वायर कर पा रहा हूँ, तो वो बहुत ही खराब है। द फर्स्ट थिंग कि व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, तो उस पे हम लोग एक चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फेलोशिप में क्या क्या परेशानी है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो दो पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे फेलोशिप में क्या क्या, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। तो मैंने पहला स्टेटमेंट ये बोला कि सिचुएशन वर्सन हो रहा है, क्योंकि नाउ जो भी ऑफिसर्स जो कनेक्टेड थे, जो हम लोगों से भी कनेक्टेड थे, एंड जो स्कॉलर्स आर कनेक्टेड टू द अदर पर्सन्स आल्सो इन दिल्ली, ठीक है, नाउ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिंग, ठीक है, वो अब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों ने जो कार्य किया है वो मैं एक ब्रीफ आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है और आगे का हमारा क्या रोड मैप है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोगों ने पिछले महीने मतलब कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हम लोगों ने बहुत मतलब एक्टिवली वी आर गोइंग टू एनबीसी एफडीसी एंड गोइंग टू कंसल्टिंग टू द मिनिस्ट्रीज, ऑफिसर्स इन द मिनिस्ट्री, दैट व्हाट आर द प्रोसेस। हमारा बजट जो है खत्म होने वाला है, एंड इससे जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हम लोगों के सामने हो जाएगा, क्योंकि इफ देर इज नॉट बजट इज नॉट एलोकेटेड टू आवर स्कीम, तो वेयर वी विल गेट मनी, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आने का स्रोत कहाँ है, ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे जैसा पता है कि बजट में जितने मनी होंगे उसी के हिसाब से स्कॉलरशिप डिसबर्स होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हुए हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की पूरी की बजट जो है वो कम हुआ है। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में जो बजट था उससे अभी जो फाइनेंशियल ईयर का बजट है वो कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो सारे स्कॉलरशिप हैं, ठीक है, उसको इसमें प्रभाव पड़ेगा और इसमें जो है बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है डिलेड होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएफओबीसी स्कॉलरशिप ही डिलेड है, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो डिलेड है। जैसे कि कुछ पेमेंट्स जो है वो ओवरसीज स्कॉलरशिप की भी पेमेंट जो है वो अटकी हुई है, कुछ पोस्ट मैट्रिक वाला जो स्कॉलरशिप है उसमें भी पेमेंट अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो प्रायोरिटी वन बेसिस पर जो स्कीम्स को रखा है उसमें एनएफएससी स्कीम है। तो एनएफएससी और एनएफएसटी जो स्कीम है उस वो एनएफएससी जो स्कीम है उनमें उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है, तो उनमें मोटा मोटी बजट वो दे रहे हैं, ठीक है। बट एनएफओबीसी में एकदम 1/3 ऑफ द बजट दिया गया है। मतलब यदि हम लोगों को 150 करोड़ की जरूरत है पूरी बजट की, तो हम लोगों को मात्र 50 करोड़ 55 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है। तो हम लोगों को सिर्फ 1/3 पेमेंट ही मिल पाएगा उससे। अब प्रावधान क्या है कि व्हाट आर द प्रोसीड्योर, कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं जब बजट कम है। तो बजट कम है तो देन वी विल देन देयर इज एन ऑफिशियल प्रोसीड्योर, मिनिस्ट्रियल प्रोसीड्योर है, जिसके तहत वी कैन गो फॉर एन एक्स्ट्रा बजटिंग। उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ओपेक है, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कुछ भी मतलब खबर ही नहीं लग पा रहा है कि क्या हो रहा है अंदर में। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। और कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि अब देखिए यहाँ पर दो बातें निकल करके आ रही है। कुछ ऑफिसर्स जो है जो एनबीसी एफडीसी में है, उन्होंने जो मीटिंग किया है वो लोग कह रहे हैं कि ये जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं दबाव बना करके कि दैट की डिसबर्समेंट जो है किसी तरह से दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी 1 से 2 वीक तक कराने का, ठीक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं। बट जहां तक मेरी जो ऑफिसर से बात हो रही है वो डायरेक्ट इसको टाल रहे हैं कि जब अगला बजट होगा मतलब कि अगला बजट 1 फरवरी 2025 को पास होगा, उसके बाद आप लोगों को पेमेंट के चांसेस हैं। तो मतलब एक ही जगह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही दो ब्रांच है, उससे दो अलग अलग खबर आ रहा है। तो इस पे ऐसा नहीं है। और इसके बारे में हम लोगों ने जो लोकसभा में भी क्वेश्चन डाला हुआ है ऑन एन स्टार्ड क्वेश्चन लिस्ट जो होता है, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डाला था। हमारे एमपी जो है श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने इस क्वेश्चंस को अराइज भी किया, प्लस
वो जो है पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उनसे मिल करके भी ये सब बातें कही है। तो ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है। मिनिस्टर नो ऑल द थिंग्स, ठीक है, मिनिस्टर्स को सारा बात पता है, ऐसा नहीं है कि दे डोंट नो एनीथिंग। बट यहाँ पर जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो टेक्निकलिटीज है, इंटर मिनिस्ट्रियल जो प्रोसीड्योर है, इसमें चीजें ऐसी फंसी हुई हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू, इट इज नॉट कमिंग टू अ सॉल्यूशन। तो दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। और ऑन 7 तारीख को बोला गया था कि एक ऑफिसर्स हैं जो वी पाटिल साहब के बहुत मतलब कार्य को देखते हैं, उनके पीए ही है एक तरह से, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि 7 तारीख को मैं आपको खबर करूंगा, ठीक है, कि आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची है और फिनांस मिनिस्ट्री से फाइल कैसे आगे बढ़ रही है, इसके बारे में खबर करूंगा। 7 तारीख को उनके द्वारा 3 बार मैं कॉल किया उनको, उनके बाद भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। तो ऑन मंडे को मैं अगेन ट्राई करूंगा कि उनसे कोई रिस्पॉन्स मिले। अब ये सारी बातें जो है वो है, इट इज द सिचुएशन, द यथा स्थिति, व्हाट आर द स्टेटस ऑफ द फेलोशिप। अब मैं बताता हूँ कि फेलोशिप कैसे डिसबर्स होगी, ठीक है, प्रोसीड्योर क्या है। तो सबसे पहला प्रोसीड्योर ये है कि पूरा डिमांड जो है वो एनबीसी एफडीसी बना करके भेजेगा मिनिस्ट्री को। तो एनबीसी एफडीसी ने दिसंबर तक का, टिल दिसंबर तक का उन्होंने डिमांड बना करके भेज दिए हैं एनबीसी एफडीसी को, सॉरी मिनिस्ट्री को उन्होंने डिमांड बना के भेज दिया है। तो अभी जो भी पैसे आएंगे, ठीक है, वो हमारा दिसंबर तक का आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद का जैसे मंथ है वो अभी आया भी नहीं है और उसके लिए अभी डिमांड फिर से नहीं भेजा गया है। तो हम लोगों ने एक एनबीसी एफडीसी को एक ये भी बात कहा है कि आप जो है ना मतलब इन एडवांस डिमांड भी बना करके भेजें जनवरी टू मार्च, ठीक है। तो एक तो बात एनबीसी एफडीसी के पास ये प्रेशर बनाया गया। द सेकेंड थिंग कि जब डिमांड ये जाएगी, ठीक है, तो ये डिमांड जाने के बाद उनका एक मीटिंग होता है, ठीक है, वो मतलब मतलब मंथली नहीं कह लें, मतलब 2 मंथ में एक बार मीटिंग होता है। उस मीटिंग में वो सारे फाइल्स को पुट अप करके एक डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है, ऑल डिसीजंस लेते हैं। वो मीटिंग पिछले महीने हुई थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने सारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे, हमने सारा चीज लिखित फोटो कॉपी करा करके दो दो चीजों में उनको सबमिट किया है। दो दो मतलब लिफाफे में हमने सबमिट किया कि हमारे स्कॉलर्स हैं, सबका मेल, आरटीआई का रिप्लाई, ये सारा चीज हम लोगों ने उनको सबमिट किया एनबीसी एफडीसी को कि आप मिनिस्ट्री को जब मीटिंग होगा तो उनको दीजिए और कहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं स्कॉलर्स के द्वारा और आप इसका निदान और निवारण करें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मिनिस्ट्री के पास पैसे हैं नहीं, तो मिनिस्ट्री ने जो है एक लेटर लिखा है फिनांस मिनिस्ट्री को कि उनको एक एक्स्ट्रा बजटिंग का जरूरत है और एक्स्ट्रा बजटिंग के लिए जो है जो प्रावधान होता है, जो प्रोसीड्योर होता है, उस प्रोसीड्योर में गए हुए हैं और हमारी फाइल्स अभी जो स्टेटस है वो फिनांस मिनिस्ट्री के पास अटकी हुई है। फिनांस मिनिस्ट्री ने एक्स्ट्रा बजटिंग के लिए हमारे फाइल को आगे अभी तक नहीं बढ़ाया है, तो इसी वजह से हमारा फेलोशिप नहीं आया है। अब फिनांस मिनिस्ट्री जब हमारी फाइल्स को आगे बढ़ाएगा, फिर वहां पर सैंक्शन होगा पैसा, फिर सैंक्शन होने के बाद फिर वापस जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देन कम से कम 8 से 10 दिन लगाएगी, ठीक है। सारा चीज का सारा जो डिमांड दिया गया है उसको चेक किया जाएगा, फिर मिनिस्टर्स का साइन होगा, फिर मिनिस्टर्स के साइन होने के बाद देन दिस मनी इज रिलीज टू एनबीसी एफडीसी और उसके बाद एनबीसी एफडीसी 2 दिन का और समय लगाएगा, उसके बाद इट इज रिलीज टू आवर अकाउंट। तो ये मैं आपको जो बताया, इट इज अ होल प्रोसेस, होलसम प्रोसेस यही है, ठीक है, और इसी के द्वारा हम लोग को जाना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन। तो अभी जो सॉल्यूशन के पार्ट है, तो देखिए सॉल्यूशंस में जो बात है उस पर एक डिस्कशन और डिबेट हो सकता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट उठ के आ जाता है कि आप प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट तो बिल्कुल करनी चाहिए, प्रोटेस्ट के लिए वी ऑल आर रेडी, ठीक है। तो प्रोटेस्ट होने से, मीडिया में खबर होने से, ये सारे चीजों में संज्ञान देने से कुछ तो बातें बनेगी और हम लोग के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शंस अटैच टू अस आल्सो।
ठीक है, अभी हमारे पास कोई अदर ऑप्शंस भी नहीं है। बट प्रोटेस्ट करने के लिए हमें जो प्री रिक्विजिट चीजें चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए ही चाहिए। यदि नहीं होंगी तो आपका प्रोटेस्ट फ्रूटफुल नहीं होगा। प्रोटेस्ट के लिए सबसे पहला चीज चाहिए दैट वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ 50। ठीक है, कम से कम 50 लोग या 40 लोग भी, कम से कम 40 लोग यदि प्रोटेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो देन आपके प्रोटेस्ट जो है ना वो ये कहा करके टाल दिया जाएगा कि सिर्फ 5-10 लड़के आए और 5-10 लड़कों का ये इशू है। ठीक है, और वहां पर आप सवाल जवाब जब करेंगे, प्रोटेस्ट करने के बाद आपको बुलाया जाता है, जो मेमोरेंडम सबमिट किया जाता है उसमें सारे लोगों का सिग्नेचर होता है, तो आपको ये कहा जाएगा कि इट इज ओनली प्रॉब्लम असाइनिंग विद द 10 टू स्मॉल हैंडफुल ऑफ पीपल। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें ना हो, तो इसके लिए कम से कम हमें 40-50 लोगों का एक नंबर जो है वो तैयार करके प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और जो माध्यम है, जैसे कि लोकसभा का माध्यम था, राज्यसभा का माध्यम था, और भी अन्य चैनल्स हैं, मेल्स करके, मेमोरेंडम दे करके, यहाँ इवन की न्यूज़पेपर्स में भी जो है हमारे इश्यूज को टेकअप किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स भी आया है। ठीक है, तो सारे जगह पर चीजें, कार्य जो चल रही हैं उसको एक स्पीड अप करके एक प्रोटेस्ट का माध्यम दे करके इसको फाइनलाइज भी किया जा सकता है। बट फॉर प्रोटेस्ट वी नीड प्रिपरेशन। ठीक है, एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी के साथ ही वी कैन डू प्रोटेस्ट। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आशा, मतलब उम्मीद है कि आप लोग सब समझ पाए होंगे। मैंने बहुत ब्रीफ बिल्कुल बिल्कुल नयन भाई, मेरे क्वेश्चन है, जैसे जी आपने बताया कि प्रोसीजर बताया कि कैसे मिलता है ये सारा कुछ, इसके बारे में जितनी भी फेलोशिप मिलती है ना देश में, सबका मोस्टली यही प्रोसीजर रहता है। ठीक है, दूसरा ये है कि सपोज करो आप बोल रहे हैं कि दिसंबर या फरवरी तक सबको रिलीज हो जाएगा। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आवाज आ रहा है। फरवरी तक आपने बोला फरवरी तक रिलीज हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, इट इज सेड बाय द वैसे ऑफिसर। नहीं बोल रहे, प्रोबेबिलिटी बता हाँ रहे हाँ, हैं सिर्फ। वो जो मिनिस्ट्री के लोग बोल रहे हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कोई अलग नहीं है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि मिनिस्ट्री के लोग ऐसा और बोल रहे हैं और हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि फरवरी तक मे बी हम लोग मिल जाएगी फेलोशिप। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं सारी चीजें, तो हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, ये फरवरी जो निकल के आ रहा है ना, इट इज नॉट दैट कि वो लोग कंसल्ट होकर के ये कह रहे हैं कि हम आराम से फरवरी में करेंगे। ठीक है, इट इज थ्रू द कंटिन्यूअस प्रेशर। ठीक है, कि हम, और अभी जो फरवरी और दिसंबर में जो ये लैग हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दैट की 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, लोगों के पैसे नहीं हुए हैं। 3 महीने से आपने कोई भी प्रोसीड्योर फाइल जो है इस स्कॉलरशिप के, आपने एक भी फाइल जो है आगे किसी भी मिनिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ाया है, तो आप जी कर जी क्या, आप जी आगे जी, बढ़ाए फाइल को। श्योर बिल्कुल, आई एग्री। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि एक बार मिल गई, 2 बार मिल गई, 3 बार मिल गई। इवन हम जितनी भी फेलोशिप की बात कर रहे हैं, चाहे वो NF हो, चाहे CSIR हो, ICMR हो, कोई भी फेलो, DST की, तो हमारा गवर्नमेंट के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ, जो होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जितने भी फंडिंग एजेंसी के जो सेक्रेटरी और उनके मिनिस्टर हैं, उनसे हमारी यही डिमांड है कि जो NF OBC फेलोशिप कितने साल के लिए दी गई है जी? कितने साल के लिए दी 5 गई? साल के लिए। ये 5 साल के लिए दी गई है। 5 देखिए साल के देखिए, लिए। यहाँ पर जो इशू है ना, हमें दूसरे स्कॉलरशिप और फेलोशिप्स को देखने और समझने की, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दो नहीं नहीं, प्रॉब्लम्स। एक मिनट, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक बात सिर्फ 6 महीने 5 महीने की बात नहीं कर रहे। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ ना, मेरा कोई वो कंसर्न है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी भी इंडिया में फेलोशिप मिल रही है, हमारा उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ, या पहले भी जो मीटिंग हुई उनके साथ डिस्कशन एक ही रहा है। इफ एनी स्कॉलर get the admission for PhD program, the the government and fund agency should block the fund for 5 years। ये हमारा इश्यू है ही नहीं कि 5 साल, 6 महीने, 3 महीने। आपका बजट है, जब आपको पता है कि हमारे इंडिया में इतने स्कॉलर PhD कर रहे हैं और उनको रेगुलर फेलोशिप भी जरूरी है, आप सिर्फ एक पॉइंट स्कॉलर का ही बजट क्यों कम कर रहे हैं? इंडिया में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनकी फेलोशिप एक दिन, 1 महीने की सैलरी रोक के दिखाओ आप। तो जब
हमारा जो पहले से भी कंसर्न रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई ये है कि आप स्कॉलर को रेगुलर एवरी मंथ, if we will not get the fellowship, we can't focus for the innovative research. मैं Who इसमें have एक innovative दिक्कत idea? हूँ। हाँ, मुझे एक नाम दो। हाँ, तो क्या होता है एनएफ ओबीसी फेलोशिप में कि हमें 4-5 महीने में एक बार फेलोशिप मिलती है, और वो भी मिलती है 2 महीने की या 3 महीने की। Definitely, that's why we are, हमारी जो डिमांड यही है गवर्नमेंट की, आप बजट करो, जो भी करो, जब आप कोई फेलोशिप दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को सारा कुछ मालूम है, कितना बजट जाएगा, कितना नहीं जाएगा, कितना कब होगा। वो सिर्फ हमारे जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई उनका बजट कम किया जा रहा है, जब आपको पता है कि सपोज करो 5,000 ओबीसी फेलोशिप है, सपोज करो, फिर आपने उनका बजट कैलकुलेशन किया, उनको हर 6 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में दे रहे हैं। तो जब स्कॉलर को अगर ये सोचना पड़े कि मैं भाई खाने का जुगाड़ कैसे करूं, मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊं, फैमिली को कैसे थोड़ा बहुत सपोर्ट करूं, तो वो रिसर्च की तरफ कैसे मोटिवेट होगा। तो आप कह तो रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ओबीसी को, एससी को, एनएफ मौलाना आजाद फेलोशिप सबको कर रहे हैं सपोर्ट, पर सपोर्ट कैसे कर रहे हैं कि उसको सिर्फ जिंदा करके रखना है, बस उनको पकड़ाते रहो। आप अभी फरवरी में भी आगे, उसके बाद कब आए ये कोई बता नहीं सकता, ऐसा है एनएफ ओबीसी के साथ। नामा भाई, मैं आप लोगों को बीच में रोकना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि देखिए, सरकार की मंशा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि हमारे यहाँ कितने स्कॉलर हैं और कितने लोगों को फंड की आवश्यकता है। ये वर्ल्ड में इवन अफ्रीका के रवांडा, युगांडा में किसी गलियों में रहने वाले ऐसे चीज़ों पे इनका पूरा फोकस्ड होता है। वहाँ पे वो उन फंड प्रोवाइड कराते हैं अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है और जो इनकी उत्तरदायित्व है। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इनके यहाँ के लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, इंडिया के अपने स्टूडेंट्स जो हैं, खास तौर पे जिसके लिए ये झंडारोहण करते हैं कि नहीं, हम ओबीसी स्टूडेंट के लिए या ओबीसी कम्युनिटी के लिए बहुत जागरूक है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि हम फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं या फिर इनके पास फंड नहीं है। इनकी मानसिकता पे डिपेंड करता है, ये करना ही नहीं चाहते हैं। हम एक ट्वीट, रेलवे एक ट्विटर पे एक्टिव हो जाता है, हम यहाँ तो 100 150 ट्वीट हम लोग डेली कर रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ये बात दिमाग में नहीं है। या वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी है, या जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, ये देश भर का एडवर्टीजमेंट आप हिंदी न्यूज पेपर्स में उठा के पढ़िए तो रोज इनका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, किसी न किसी मंत्रालय, किसी न किसी स्कॉलरशिप को लेकर। ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं है, ये देना नहीं चाहते हैं। तो इस मानसिकता पे हमको काम करना पड़ेगा कि ये देना क्यों नहीं चाह रहे हैं, मजबूर हम ऐसे को कैसे करेंगे। बाकी हम कितने भी नियम कायदे लगा लें, हम कितने भी अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल जो हमारी चीज़ें और उन पे काम कर लें, इस पे कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। हम ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, हम जानते हैं कि हम केवल जो है हम हमारे ऊपर वो राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत हावी हो जाती हैं, हम लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव हो जाती हैं। ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो हम इंडो पाकिस्तान वॉर कम्युनिटी विवादों में हमको उलझा दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें हैं, तो हमको इससे कैसे आगे आना है ये सोचना बहुत जरूरी है। वही है कि इन सब चीजों में उलझना नहीं है। अगर हम हमारा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं ओबीसी हूँ और कौन नहीं है, ये सब वगैरह ठीक है, ये इशू है, एक ओबीसी का बहुत बड़ा इशू है कि हम हर प्रोस्पेक्ट में सोच सकते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, दुनिया भर की चीजें हो रही। पर मेरा अपना पर्सनल कंसर्न है कि अगर हम साइंस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम अगर इसको प्रायोरिटी में ध्यान रखते हुए, तो हमारा जो मुद्दा है वो कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं होगा कि हम 10 बातें करें। हमारा फोकस है कि भाई हमें फेलोशिप चाहिए और 5 साल के लिए चाहिए। आज हम आवाज उठा रहे हैं, कल के दिन हमारे जूनियर्स आएंगे, वो ही आवाज उठाएंगे, सेम सिचुएशन से वो फेस करेंगे। तो अगर हम सरकार से हमें सिर्फ यही बात करनी है कि भाई अगर कोई लड़का ओबीसी, अगर आप ओबीसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो करिए, लेकिन हमारा फंड 5 साल के लिए ब्लॉक करिए। हमें हर महीने फेलोशिप चाहिए, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और जो भी उनके नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो नॉर्म्स हमारे फेलोशिप के लिए भी होने चाहिए। चाहे वो लीव का हो, चाहे वो मैटरनल लीव हो, बहुत सारे इश्यूज हैं छोटे मोटे जिन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सो मेनी इश्यूज। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो जेआरएफ स्टूडेंट है, मेरा तो 0.2% से रुका हुआ था जेआरएफ, तो मैं आ गया इसमें।
लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसी कौन सी चीज है जो जेआरएफ मतलब जिनको उनको लगातार मिल रही है जेआरएफ स्टूडेंट को, और ओबीसी वाले वो नहीं भी नहीं तो नहीं नहीं, मेहनत ऐसा करके नहीं है पूरा ऋतुराज भाई, ऐसा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भी नहीं सर, है। ऐसा ही है। मैं बताती हूँ, मेरे ऐसा जो है फ्रेंड्स हैं तब सर, से मेरे उनको भी 3 क्लास में बार मिल फ्रेंड चुका को है, आ उनको चुका 3 है। बार नहीं मिल नहीं, चुका है जब से मेरा मैं बात एग्री अप्रूव कर रहा हुआ हूँ, है। मेरी बात सुनिए। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वोमेन साइंटिस्ट की कल ही मीटिंग की हम लोगों ने। वोमेन साइंटिस्ट जो डीएसटी से फेलोशिप लेती है, उससे पहले सीएसआर का आपको केस मालूम है कितना हमने मीडिया पर उठाया था। सीएसआर ने 300 लड़कों की, जब इलेक्शन चल रहा था, 300 फेलोज की फेलोशिप टर्मिनेट कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि उनकी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं पहुंची। जब हमने सीएसआर से क्वेश्चन पूछा कि भाई विदाउट इंफॉर्मेशन हाउ कैन टर्मिनेट द फेलोशिप, देयर फेलोशिप, ना आप पीआई को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ओनली जस्ट यू आर, जो स्कॉलर उसको कल्प्रेट घोषित कर रहे हैं कि ये नहीं भेज रहा है। भाई हर स्कॉलर, पीएचडी वाला स्कॉलर जो पीआई से कनेक्टेड है, पीआई के अकॉर्डिंग चलता है, उसको ऑलरेडी पहले से इनसिक्योरिटी, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी पीएचडी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये पीएचडी के साथ बहुत बड़ा खेल है, रिसर्च के साथ मैं बहुत राइट बड़ा। सर, राइट। सर हम बताना लोग चाहूंगा। पीएचडी की बात नहीं अभी हम लोग ना इसका बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप का। और ये पॉइंट नहीं है कि मैंने देखा है मेरी जूनियर्स तक का आ गया है, जो मुझसे बाद में क्लियर किया है उन्होंने, चलिए और आप, मेरे से बाद ठीक है में काजल, मैं बात मान रहा क्लेम हूँ किया है आपकी। आप उन्होंने। उसको सिर्फ ये देख रहे हैं काजल कि जी मेरी लैब काजल में जी एक मैं को मिल रहा, मुझे नहीं बता मिल रहा, ये देख रहे हैं। तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, और मैं तो यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में तो क्लास लेता हूँ। मुझे मेरे जो गाइड अलॉटेड हैं वो कॉलेज के हैं, तो मुझे कॉलेज में भी क्लास लेनी पड़ती है। आई वॉज अलॉटेड 2 क्लासेस अ डे, पर मेरी जो फेलोशिप है वो मई के बाद नहीं आई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना हेजॉर्डियस और कितना मेरे साथ कितना ज़्यादा ये बड़ा अन्याय है। सेम प्रॉब्लम है ऋतुराज, ऋतुराज, मेरा भी। ऋतुराज बात सुनिए, आप सब लोगों की बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है, पहले कंसर्न पे आने की बात करिए। कोई ये नहीं कि जैसा सपोज करो मैं पीएचडी मेरे कलीग को मिल रही पर मुझे नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने 10 फंड एजेंसी खोल रखी है, ठीक है, 10 को अलग अलग तरीके से रन करा रही है। हमारा ये भी कंसर्न है कि भाई आप एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाइए फंड डिसबर्समेंट करने का। जी जी बिल्कुल, आई आपके एग्री अगर विथ यू, आई एग्री आप विथ यू। अलग अलग जी भेज रहे जी। हैं, राइट राइट सर, तो राइट सर। स्कॉलर को उन्होंने पहले से ही डिस्क्रिमिनेट कर रखा है, और हम बिल्कुल अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल एनर्जी के साथ फाइट करते हैं, और अलग अलग उनको उनको मजा आ रहा है सरकार को आप फंडिंग देने सर, में। मैं आपसे एक सेकंड रुकना चाहूंगा। आपका क्या जी नाम जी, है? मेरा नाम डॉक्टर लालचंद्र विश्वकर्मा। आई हैव सर? completed my PhD from All India Institute of Medical Science, New Delhi. Right now अच्छा, I am तो pursuing my postdoc. हाँ, जो लाल जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारा जी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारा प्रोसीड्योर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रोसीड्योर नहीं बना हुआ है। एनबीसी एफडीसी जो है फंडिंग एजेंसी जो है अलॉट की गई है भारत सरकार के द्वारा, कि वो जो है फंडिंग को देखेगी और जो डिसबर्समेंट को देखेगी। तो क्यों नहीं प्रॉब्लम मिल रही यहाँ पर, फेलोशिप? हाँ, फिर मैं फेलोशिप क्यों नहीं मिल रही? बात को खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। जी जी, यहाँ पर वो सारा प्रोसीड्योर, सारा चैनल, ठीक है, 5 साल के लिए कौन देखेगा, क्या करेगा, सारे ऑफिसर्स, सारा चीज असाइंड है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि फंड्स ही नहीं है, ठीक है। तो फंड्स नहीं है तो हम लोग ये बातें जरूर करें कि इस पे जैसे मीटिंग यदि करना है या कोई भी बातें करनी है तो उसमें ये बातें हो सकती है कि फंड्स को रिस्टोर कराने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है। हाँ अभी तो एग्जैक्टली जैसे, और जो हम लोग जो है, ये पूरा जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, वो बेसिकली कंसर्न है एनएफओबीसी स्कॉलर्स। जो ओबीसी स्कॉलर्स पूरे देश में जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो ओबीसी स्कॉलर्स के ऊपर ही कंसर्न है। तो इसलिए हम लोग इसको एक केंद्रित तरीके से यदि लड़ाई को लड़ा जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अब जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही बात, लेकिन इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा कि हम एक रेफरेंस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉक, वो रेफरेंस इसलिए कर रहे हैं। रेफरेंस में मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं वो विद द टाइम है। अभी जो है आपको पता होगा कि जो यूजीसी के द्वारा जो दिया जाता है जेआरएफ, ठीक है, जो रेगुलर तरीके से दिया जाता है, उसमें भी बहुत सारी जो है डिसबर्समेंट में प्रॉब्लम्स आई हैं। एरियर्स, बहुत सारे लोगों का एरियर्स नहीं आया है। बहुत सारे लोगों का जो मंथली डिसबर्समेंट है वो टाइमली नहीं है। पहले वो भी टाइमली होता था, मतलब कि आपका यदि जैसे दिसंबर मंथ अभी स्टार्ट हुआ है तो आपके नवंबर मंथ
का, सॉरी, अक्टूबर मंथ का पैसा आपको दिसंबर तक में तो मिल ही जाता था, ठीक है। मगर अब जो सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका सितंबर तक का ही क्लियर हुआ है, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ का क्लियर हुआ है, बट उनके 6 महीने के एरियर्स बाकी हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। एनएफएससी में भी जो है पेमेंट आ रहा है, मगर इट इज नॉट इन अ वेरी रेगुलर मैनर, कि जैसे मंथली बेसिस पर अब कोई भी फेलोशिप, मुझे तो मतलब जो फेलोशिप के बारे में पता है, वो ऐसा कोई भी फेलोशिप अब भारत में नहीं बच गया है जो एकदम मंथली बेसिस पर एकदम 1 तारीख को जैसे मिलता है वैसे मिल रहा है। ऐसा आज तक कोई भी स्कॉलरशिप भारत में अब ऐसी बची हुई नहीं है। सारे स्कॉलरशिप के साथ जो है पैसा, फंड्स कट हो रहा है। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब ये चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो बजट पेश हुआ या उससे पहले भी जो बजट पेश हुआ, हमारा जो एजुकेशन बजट है वो धीरे धीरे कटल डाउन किया जा रहा है, वो धीरे धीरे काटा जा रहा है। अब हमारा जैसे 2000 करोड़ या 3000 करोड़ या 4000 करोड़ रुपए में यदि काट लिए जाएंगे फंड से, तो जब फंड रहेगा ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो यार ये एक सारी बात जो आई सवाल नारायण, है, ये सारी जो नारायण एक सवाल बात आई, है। सरकार को जब ये मालूम है कि हमारे 10,000 स्कॉलर हैं, सपोज करो ओबीसी के, कि 5,000 स्कॉलर हैं, उनको 5 साल में फंड देना है, तो या साल भर में बजट पैसा देना है, रिलीज करना है फेलोशिप, तो कितना बजट आना चाहिए? तो ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना। नहीं, देखिए, आप इसके बारे में भी आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं, मतलब उन्होंने वो सोचा हुआ है, ठीक है। वो क्या करते हैं, 1000 स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को जो है वो हर साल वो अलॉट करने की बात करते हैं, ठीक है। हर साल 1000 स्कॉलर्स जो है वो एनएफओबीसी ग्रुप में जुड़ेगा, एनएफओबीसी का स्कॉलरशिप ग्रुप का फायदा लेगा, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि पहले जो है एनएफओबीसी स्कीम के बारे में लोगों को बहुत सारा जागरूकता नहीं था, तो इस वजह से 1000 में से 300 लोग, 200 लोग ही ज्वाइन करते थे। मगर पिछली बार हम लोगों ने एक बहुत बृहद रूप से जागरूकता फैलाई और लोगों के बीच में ये सारी बातें जाने लगी, तो इसके वजह से 1000 में से 750 लोग ज्वाइन किए, ठीक है। 750 लोग जब ज्वाइन किए तो ये जो नंबर्स है, ये टोटल स्कॉलर्स का नंबर जो है वो 2250 हो गया, ठीक है, 2250 हो गया। तो हम उनका जो एक मतलब जो इनिशियल जो सोचा हुआ था कि हमारा जो स्कॉलर्स जो है वो 1300-1400 के आसपास होगा, तो उस हिसाब से वो बजट को मैनेज करके काम करना चाह रहे थे। बट वो अब बजट जब स्कॉलर्स जब ज्यादा ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स जो है ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे स्कॉलरशिप आप दे दिए तो ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट हो गया तो लोग स्कॉलरशिप में जाते ही हैं, ठीक है। बहुत लोग नहीं भी जाते हैं, बहुत लोग जॉब करते हैं तो स्कॉलरशिप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें से अभी ये सबसे हाईएस्ट है कि 1000 लोगों में से 750 लोगों ने ये ओबीसी स्कॉलरशिप ज्वाइन किया है। तो इस वजह से नंबर्स जो है हमारा वो 2200 के आसपास पहुंच गया है, और इसी वजह से उनको एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़ गई है, और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं ये यार, आप लोग सब डियर लोगों को ये जानकारी मैं देना चाहता डियर था, इसीलिए मैं नारायण भाई, वो सारी बातें हैं। जब मिनिस्ट्री में पॉलिसी मेकर जो होते हैं, जब भी कोई मतलब योजना चलाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव नेगेटिव सब देखते हैं। हमारा कंसर्न ये है कि अगर सपोज करो जो ओबीसी की जो स्कीम चला रहे हैं, जितने 2200 लोग आ गए हैं उनके, तो एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़ रही है। तो जो 2200 लोग आए वो सडनली तो आए नहीं है, वो उनकी स्कीम के तहत ही आए ना, कि भाई हमने इतने फेलोशिप निकाल। 750 लोग एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब 750 लोग एक साल में ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ, तो एक साल में ज्वाइन किए, तो उन्होंने जब निकाली है, सपोज करो उन्होंने 1000 सीट निकाली, ठीक है। 1000 सीट में 500-600 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनका तो 1000 के अकॉर्डिंग बजट होगा ना, कि भाई 1000 लोगों को हम बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साल भर में। तो वो तो ये जो है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है, जैसे बजट अलॉट जो होता है ना, इट इज ऑल इन अ ओपेक मैनर, ठीक है, कि हम एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि हम गवर्नमेंट की सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, आपने डेफिनेटली आपने बहुत एफर्ट किया और आपने पूरा मतलब चीजों को स्प्रेड किया, पूरी सोशल अपनी ओबीसी कम्युनिटी को एकत्रित किया, सारी चीजों और सारे मुद्दों को से वाकिफ हैं। पर यहाँ आता है कि अगर स्टिल वी आर सफरिंग, देन हाउ कैन गेट द फेलोशिप। तो ये बिल्कुल तो मीटिंग यदि ये बुलाई गई है, तो ये मीटिंग का तो मेन मकसद तो यही है, और क्या मकसद? हाँ, बिल्कुल वही मकसद है
कि देखो हम अगर एक गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट को भी सोचते हैं कि भाई उन्होंने इतना बजट देना है, इतने लोगों को फेलोशिप देना है, तो मेरा जो अपना पर्सनल कंसर्न है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम को निकालती है तो उसको मालूम होता है पॉजिटिव नेगेटिव कि कब तक वो कितना फेलोशिप कब डिले कर कब कब कितना रिलीज करेगी, कितने फेलोशिप ज्वाइन करेंगे। तो मैं उस अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ। हमारा मुद्दा ये कि भाई गवर्नमेंट को अगर स्कीम निकाल रही है 5 साल के लिए, पीएचडी जब ज्वाइन करता है तो उसके लिए 5 साल के अकॉर्डिंग सोचे कि भाई उसका 5 साल के लिए बजट करो, वो चाहे कैसे भी मैनेज हो, स्टिल स्टूडेंट शुड नॉट बी सफर। हमें अपनी लेवल पे हम क्या सोचते हैं, हमें गवर्नमेंट की स्कीम पे आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, लेकिन हर कोई तो ये सोच रहा है कि मैं अपना डेली का रूटीन खर्चा कैसे करूं, तो उसको मैं तो आप गवर्नमेंट दोनों लोगों को ये बात तो सही है क्योंकि इससे तो जैसा हमारा रिसर्च एरिया 22 से 23 जो लोग हमारे स्कॉलर्स हैं एनएफओबीसी में, ऐसा तो नहीं कि लाखों में लोग हैं जिनको डेटा जिनका तैयार करने में बहुत समय लगेगा। वो तो एक मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, बाय द नेम बाय द रोल नंबर। अब कितने लोगों का इन्होंने फंड ट्रांसफर किया है इतना इनको पता है, कितने दिन से नहीं किया ये भी पता है। अब बेसिक सा नियम है कि इतने दिन तक नहीं दिया है, इतना कंटिन्यूएशन अपडेटेड है, इतने लोगों को दे देना चाहिए, इतना पेंडिंग है। अब इसके लिए क्या उन्हें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा? तब तो ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे देश के लिए। क्योंकि देखिए मैं देख रहा हूँ पॉलिटिशियंस जितने हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, उनके जीवन के लिए किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। वो जब भी चाहते हैं विधानसभा या पार्लियामेंट में बैठ के अपने लिए हर चीज के लिए वो वोट करा लेते हैं और तत्काल प्रभाव से वो उसमें फैसिलिटेट हो जाते हैं। तो ये एक सरकार की ड्रॉबैक है। हम इस पे चाहे जितना डिस्कस कर लें, वो जब तक कोई बहुत सॉलिड क्या बिल्कुल कर सकते ऋतुराज, हैं। बिल्कुल एग्री है, बात सबसे एग्री है, सबकी बातों से सहमत है, हमारा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी के साथ, या हम आई इसलिए कि हम डिबेट करें, रिफाइन करें अपने आप को, एक दूसरे को समझें, प्रॉब्लम्स को कैसे हम इनिशिएट कर पाए, वही मोटो है मीटिंग का। और ये कि अगर जिसके पास जो बेस्ट सॉल्यूशन है कि कैसे हम अपनी इस इशू को नेशनल इशू बनाया जाए और अच्छे ढंग से, आप लोगों ने भी बनाया है, लेकिन और अच्छे ढंग से कैसे बनाया जाए जिससे सरकार का अटेंशन हमारे जो स्कॉलर हैं उनकी फेलोशिप पर जाए, और जल्दी से जल्दी वो एक प्रोटोकॉल बनाए कि भाई अगर देश में स्कॉलर के लिए हम स्कीम निकाल रहे हैं तो उनके फाइनेंस मैटर को भी हमें सोचना पड़ेगा, और उनको हर महीने या 6 महीने में रेगुलर फेलोशिप मिलती रहे, जिससे वो एक इनोवेटिव, हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री हैं वो आप सोशल मीडिया पर देखो, डेली डेली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनोवेटिव रिसर्च, ये रिसर्च। भाई मुझे ये बता दो, अगर मैं अपने खाने के लिए जूझ रहा हूँ तो मेरा माइंड इनोवेटिव कैसे चलेगा? सर ये बातें तो, यही बात तो रिसर्च का विषय है। मुझे लगता है कि अगला रिसर्च इस बात पे होना चाहिए कि एनएफओबीसी रिसर्च स्कॉलरों को कैसे फंड नहीं दिया जा रहा है, क्या टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, क्या सोशल इश्यूज आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है जो हमारे ही बीच में से कोई ना बंदा इसमें रिसर्च करेगा आगे चल के। सरकार को बहुत अच्छे से पता है, सरकार नहीं चाहती है, सीधी सी बात है। और मैं एक चीज और बता दूं, इस स्कीम में भारत के पूरे प्रांतों से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मूवमेंट चला पाना फिजिकली ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग पाता ठीक है। है, तो जो हमारे पास स्किल्स है, जो हमने ग्रेप की है अभी तक, हम उसका ही उपयोग करें। अब बात आती कैसे इनिशिएटिव करें, अगर वो इस पे डिस्कशन किया जाए, नारायण भाई और सब लोग बताइए, नामदेव भाई, कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाए। मेरे पास जी जो आइडिया है मैं भी बताऊंगा, शेयर करेंगे, एक कलेक्टिव वे में हम इसको इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, और कैसे इसको मैं नेशनल मैं इशू मैं बनाया जाए। एक चीज आपको बताता हूँ कि जी जैसे जैसे जो भी मैं लखनऊ में हूँ, तो जो भी स्कॉलर्स लखनऊ में हैं, अगर वो चाहेंगे किसी दिन, तो आफ्टर 22 दिसंबर पीसीएस एग्जाम है उस दिन, उसके बाद किसी भी दिन वो चाहेंगे तो जो जिला में एक डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो जिला वो एक शायद उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे उपलब्ध रहूंगा और वो मेरे साथ चलें तो मैं वहाँ पे एक मीडिया ब्रीफ होती है जो हर जगह एक होता है, वो किया जा सकता है। दूसरी चीज, ईमेल्स का जो हम लोग चलन किए हैं, जो ट्विटर्स किए हैं, वो जी जी चलता रहेगा। और मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि हमारे ट्विटर्स और हमारे ईमेल्स को सरकार की तरफ वो नहीं पहुंचते, उनके पास अच्छे से पहुंचते हैं। और बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास फंड नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 200-400 करोड़ रुपए हमारे सरकार के लिए, मतलब ये तो बहुत निहायत बड़ी गंदी बात हो जाएगी कि सरकार के पास फंड नहीं है।
सरकार फंड को पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली रिलीज नहीं करना चाहती है, विषय ये है। हम उनसे रिलीज कैसे करवाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस बात पे अगले कुछ 2-4-5 दिनों में हम लोग सोचें और एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ मैं चाहता हूं कि हम ओबीसी जितने मिनिस्टर्स हैं उन पे फोकस करें, तो ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा, बजाय कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री को फ़ोन करेंगे या उनको मिनट, उससे कोई मतलब नहीं है। पीएमओ को करेंगे शायद ही कुछ इफेक्ट हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी को करें, प्रधानमंत्री जी को टैग करें, या फिर जो हमारी मिनिस्ट्री देख रहा है उनको देखें, तो हो सकता है कुछ बात बने। या फिर हमारे कुछ जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो शायद कुछ बात कर पाए। बाकी तो जानते हैं राजनीति में क्या होता है सर, सब लोगों को पता है, सबको अपना देखना है। आप देखते हैं कितने इनोवेटिव आइडियाज के साथ सरकार आती है बाहर, एडवर्टीजमेंट कराती है। एक्चुअली में मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आप लोन लेने के लिए लोन सरकार का एक विज्ञापन निकालती है कि आपको 5 लाख रुपए तक का कृषि लोन मिलेगा। आप बैंक में जाइए, आपको 1 लाख रुपए से ऊपर वो लोन नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो एग्जैक्टली कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस ये है कि हम लोगों को एक साथ किसी एक मिनिस्ट्री को टारगेट करना है एक दिन, इसके बाद किसी एक मिनिस्टर्स को, किसी एक इंटेंशंस को, देन आफ्टर हमको अगले दिन कुछ और टारगेट करना है। और अगर नहीं हो पा रहा है इन सबसे, तो ये मान के चलिए कि जब तक फिजिकली हम लोग 10-20-50 लोग जाके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट इन द सेंस कि मिलेंगे नहीं या कुछ ऐसा इनोवेटिव, तब तो सरकार मानेगी नहीं। सरकार का उसका बिल्कुल बिल्कुल उसका एक और भी तरीका, कई सारे तरीके हैं हम कैसे धीरे धीरे उसको उस लेवल तक ला सकते हैं कि कैसे ढंग से, क्योंकि पहले तो हमें खुद कंसर्न होना पड़ेगा, हमें अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पे काम करना पड़ेगा। कितने हमारी यूनिवर्सिटी में लोग हैं, हर जैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो आप खुद देखें कि ओबीसी के जो स्कॉलर जो फेलोशिप ले रहे हैं वो कितने हैं, वहां पे भी थोड़ा अवेयरनेस आएगी लोगों की, हाँ भाई इतने 10-50 है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप में भी काम कर सकते हैं। तो और नयन भाई कहाँ है, अभी चले गए क्या? हाँ शायद नामदेव, नयन भाई शायद लेफ्ट हो चुके हैं शायद। हाँ अच्छा, तो नामदेव भाई आपने जो मेल किया था, हमें पहला मेल आपका मिला था, तो हम लोगों ने इस पे इनिशिएट लिया कि भाई कैसे किया जाए। लोग ऐसा नहीं है, देखो किसी के कार्य को या किसी ने जो मेहनत की है उसको इग्नोर कोई नहीं कर रहा है। हम ये सब लोग मिलकर ये सोच रहे हैं कि हमारी फेलोशिप कैसे मिले, उसको बेस्ट वे में कैसे इनिशिएटिव लिया जाए जो है गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़े, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जो भी है उसके माध्यम से हम अपनी बात को रखें। जो मैं, अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो बताइए, फिर मैं उस बेस पे आता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप एक छोटे से लेवल से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि जिनने मतलब ओबीसी स्टूडेंट जो है, जो स्कॉलर इनरोल्ड है, वो उतने जागरूक नहीं है। तो यही आते है कि जो स्टूडेंट एक्टिव है उनको एक्टिव रखना। ये अभी जो सब एक्टिव स्टूडेंट्स है, अभी हमारे हर रोज 100-150 जो सीट्स होते हैं वो तो कंटिन्यू हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि वो तो एक प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा, वो तो चालू रहना चाहिए। हमारे मेल्स जो जाते हैं वो चालू रहना चाहिए। अभी मुझे लगता है 9 नवंबर को मिनिस्ट्री में हमारी फाइल गई है और तब से वो फाइल पेंडिंग ही है, और उनका कहना है कि वो फरवरी में अभी क्लियर हो जाएगी। तो आप सोच सकते कि वो लोग कितने सेंसिटिव है ओबीसी स्टूडेंट के टॉपिक को लेके, क्योंकि उन्होंने इसी जो वीक में एनएपीएससी स्टूडेंट की तो स्कॉलरशिप क्लियर कर दी, मगर ओबीसी स्टूडेंट को 3 महीने रुकने के लिए कह रहे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए हम जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो चालू रखना चाहिए। इस प्रोसेस में नए भी कुछ हमारे पास कॉन्टैक्ट आएंगे। जब जैसे एजुकेशन एक्सप्रेस ने हमारी न्यूज पब्लिश की थी, तो हम कंटिन्यू इस मुद्दे पे बने रहे, तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमारी न्यूज पब्लिश करने के लिए राजी हो। बिल्कुल वो एक और बात है कि मीडिया भी, पता है, मीडिया भी अपने एंगल से देखती है। जब उसको लगता है कि हमारे स्कॉलर या कोई भी सोसाइटी में कोई इनिशिएटिव ऐसा होता है, उनको लगता है कि फिजिकली हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार से हो, तो वहां पे फिर मीडिया उसको अटेंशन देती है। और सरकार पे भी जब मीडिया में आता है और भी कई सारी चीजें जब सोशल मीडिया पे आता है तो इफेक्ट पड़ता है, उस पर मीटिंग करते हैं। और जब हमारी सरकार के साथ अगर हमारा एफर्ट यहाँ तक पहुंचा कि हम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में आप लोग जाइए,
उसमें बात रखिए कि भाई 6 महीने 5 महीने की बात नहीं है। आप बजट को ऐसे बनाइए कि भाई जो भी स्कॉलर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो ओबीसी स्कॉलर को, तो आप पूरे 5 साल के लिए फंड ब्लॉक करना होगा आपको। तो हमारी फाइनल डिमांड तो यही रहेगी, आप रेगुलराइजेशन करो। तो है। अभी स्टेप क्या है जो मेरे मन में आ रहा था, या आप लोगों के मन में कोई है कि अगर हम सपोज करो, सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी में वर्क करें थोड़ा, और उनके एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएं कि जितने भी ओबीसी स्कॉलर हैं सबका कौन से फेलोशिप में कब एनरोल हुआ, और उसका सिग्नेचर कैंपेन चलाएं। तो हम एक आइडिया लग जाए कि भाई इतने स्कॉलर हमारी यूनिवर्सिटी में है, फिर उनको एक अलग से ग्रुप बना के उनको इन्फॉर्म करें कि आज ये एक्टिविटी है, आज ये। तो हम प्रोटेस्ट तो एक बहुत बड़ी फाइनल स्टेज में आता है, उससे पहले छोटे छोटे स्टेप हैं। सपोज करो हम अपनी एक बैनर बनाए यूनिवर्सिटी के गेट पर, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में है, हम उस यूनिवर्सिटी के गेट पे 10-12 लोग इकट्ठे, जितने भी स्कॉलर हैं वो सब इकट्ठे हुए एक टाइम पर, और वहां से अपना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें कि हाउ व्हाई द ओबीसी स्कॉलर आर सफरिंग। ये एक अच्छा दूसरा आइडिया है, हाँ, ये एक अच्छा दूसरा आइडिया है है। जी दूसरा है, एक लिखते हम इसको बना लेंगे कि इस रोड मैप बनाएंगे, हम धीरे धीरे कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक स्टेप है जो यूनिवर्सिटी पे वर्क करना है, हमारे स्कॉलर को जोड़ के हम यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, सपोज करो ऋतुराज है, यहाँ से 10 लोगों को बुलाया और अपने यूनिवर्सिटी की गेट पर, लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट पर 10 लोगों की फोटो खींच के एक 15 मिनट आधा घंटे का इन्होंने एक सिंबॉलिक रख दिया, तो वो जब सोशल मीडिया पे जब फोटो जाएगी, इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल, वो मीडिया उसको अटेंशन देगा। दूसरा है कि जो हमारे लोकल जो हमारे मीडिया है उनसे भी हम कांटेक्ट करें, प्लस हमारे जो लोकल एमपीज हैं उनको भी हम अपनी बात पहुंचाएं, वो चाहे हमारी बात उठाएं चाहे ना उठाएं, हमें उनको बताना है कि देखो हम ये इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हाउ कैन सर्वाइव, हाउ कैन डू द इनोवेटिव रिसर्च, और रिसर्च को प्रायोरिटी में रखते हुए कि भाई रिसर्चर हैं, वी वांट टू डू रिसर्च बट ड्यू टू द लैक ऑफ फंड वी आर नॉट फोकसिंग, वी आर नॉट एबल टू फोकस टुवर्ड द रिसर्च। एक तो ये था, दूसरा ये था अगर हम थोड़ा और इनकरेज करें अपने आप को, तो हम लैब में रहकर एक स्लोगन डालें, व्हाई वी ओबीसी स्कॉलर आर सफरिंग। हम अपना एक पोस्टर बनाएं, लैब में काम करते हुए फोटो खींच के सोशल मीडिया वायरल करें, हम अपने ट्विटर में उसको शामिल करें। तो ये जब ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर क्या होगा, जब इन छोटे छोटे स्टेप में जाकर हम एक फाइनल एक डेट डिसाइड करेंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब लड़के अवेयर हो जाएंगे कि स्टिल वी आर रनिंग या वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी शुड कम टुगेदर, देन वी विल कॉल द मीटिंग अक्रॉस द कंट्री। एक पर्टिकुलर डेट में हम बुलाएंगे कि भाई इस डेट में हम प्रोटेस्ट करें, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के यहाँ मार्च निकालें, प्रोटेस्ट करें, घूम उधर से लीफलेट लेके अपना एक छोटा सा यूनिवर्सिटी कैंपस में, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी से हम अपना दिखाएंगे। तो ये एक स्टेप है जो मेरे मन में है, और अगर इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और इससे पहले भी जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, हम जंतर मंतर में जाके इतना एफर्ट लगाने से अच्छा है अपने अपनी जगह से हम चीजों को सिंबलाइज करें, बात को, वॉइस को बढ़ाएं, इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। और बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत, और ट्विटर पर भी हम अपने लोगों से भी कराएं, अपने लोगों से बोलें कि भाई अपने अधिकारों के लिए तो कम से कम आए। अगर हम खुद के लिए नहीं आ सकते तो कल के दिन सोसाइटी में कोई ऐसी मेजर इशू आए तो हम क्या सोच सकते हैं। हाँ, रिसर्च में डेफिनेटली हम इन्वॉल्व हैं, हमें रिसर्च में भी टाइम देना है, तो ट्विटर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो और बताइए। हाँ, नयन भाई फिर से ज्वाइन हो चुके हैं, शायद वो फुल बोलना चाहते हैं तो बोल सकते जी हैं। जी नयन बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। नयन भाई आप क्या? जी जी जी, तो जी देखिए जी जो बातें हो रही है, मुझे लग रहा है कि लाल जी जो जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत सारी बातों जो है वो संज्ञान में लेकर के आए हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है और जो एनएफओबीसी स्कॉलरशिप्स के साथ जो इश्यूज है, ठीक है, इसको हम लोगों ने 2020 से टेकअप किया हुआ है।
ठीक है, फ्रॉम 2020, और 2022 में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो फंड्स रिलीज करती है वो यूजीसी को फंड्स दे रही थी, फिर भी यूजीसी ने जो है फंड रिलीज नहीं कर रहे थे हमारे स्कॉलरशिप की। तो उस पे हम लोगों ने एक बृहद लड़ाई लड़ी, ठीक है, और थ्रू स्टेप्स, थ्रू स्ट्रेटेजीज, ठीक है, थ्रू चैनल्स हम लोगों ने बना करके लड़ाइयाँ लड़ी, और फाइनली जो है हम लोगों की स्कॉलरशिप आई। और हम लोगों ने फंडिंग एजेंसी जो डिसबर्समेंट एजेंसी है यूजीसी से, उसको बदल करके उसको ये भी रिक्वेस्ट हुआ कि यूजीसी, क्योंकि यूजीसी जो है वो फंड्स डाइवर्ट कर देती थी, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस के एनएफ ओबीसी के फंड हो या कुछ और भी फंड हो, ठीक है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आता था वो एक्चुअली वो कुछ दूसरे चीजों में खर्च कर देती थी। तो एक अच्छा पहल रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एनबीसी एफडीसी बना करके और डिसबर्समेंट दिया। बट अब ये जो प्रॉब्लम हो रहा है कि जो हमारा मंथली स्कॉलरशिप है, इट इज नॉट टर्निंग इनटू अ क्वार्टरली बेसिस, और उसके बाद भी इट इज नॉट टर्निंग इनटू अ हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके निदान के लिए भी हम लोगों को साथ में मिल करके कार्य करना है, और साथ में मिल करके इसके लिए आवाज उठाना है, और उठाया जा रहा है। प्राय प्राय आप देखेंगे कि वेरियस चैनल से आवाज उठ रहे हैं। तो आगे जो स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं वो ये है कि अभी तो ये जो ऑफिसर्स से कल मेरी बात होनी है, ठीक है, जो वी पाटिल साहब है जो कि डायरेक्टर है एनएफओबीसी स्कीम के, उनसे एक बार बात होगी, ठीक है। उनसे मैं कोशिश करूंगा कि अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो मैं इन पर्सन जा करके, हम लोग यहाँ से दिल्ली में जो जेएनयू डीयू से कुछ लड़के हैं, हम लोग इन पर्सन जा करके उनसे मिलेंगे, ठीक है, और उनको जो है सारा प्रूफ और डाटा अवेलेबल कराएंगे। उनके पास है भी, ठीक है, फिर भी हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनको एक मेमोरेंडम दिया जाए, ठीक है, उनको ये सारा डाटा अवेलेबल कराया जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर उनसे एक रिसीविंग ले लिया जाए, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि उनसे जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम लोगों ने पिछली बार कनेक्ट किया था, जो कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पीए हैं भरत चौधरी जी, उनसे भी हम लोग जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और उनको भी सारा चीज हम लोग डाटा अवेलेबल कराएंगे, उनसे भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो वीरेंद्र कुमार जी हैं, उनसे भी हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे, और उनको भी सारा जो है हम लोग डाटा अवेलेबल करा करके उनसे इन पर्सन मिल करके उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और सारा चीज करेंगे। ये पहला स्टेप हो सकता है। फिर उसके बाद फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप्स में प्रोटेस्ट एक माध्यम है। बट प्रोटेस्ट के लिए अगेन आई एम सेइंग, फॉर प्रोटेस्ट वी नीड नंबर, ठीक है। ऐसे नैन भाई, प्रोटेस्ट के लिए जो अभी मैंने बात की थी, वो प्रोटेस्ट ऐसा नहीं कि हमें मास में हमें दिल्ली जाए, कहीं जाए, एक जगह जाए, हम अपने इंस्टीट्यूट लैब से भी इंस्टीट्यूट और लैब से प्रोटेस्ट का माध्यम जो है वो किया जा सकता है, इट इज राइट, ठीक है, वो सेकेंड स्टेप में होगा। मगर हम लोगों ने वो भी किया है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपको ये लग रहा, आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिए थोड़ा, ठीक है। मेरा कहना ये है कि ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि हम लोगों ने बहुत बार ये जो आप बता रहे हैं सारी चीजें बताई है, ठीक है। हम लोग जो है एनएफओबीसी स्कॉलर्स जो है जो हर एक यूनिवर्सिटीज में है, हम लोग वहां से भी अपनी झंडे बुलंद किए हैं, और हम लोगों ने क्या कहते हैं उस लेवल पे भी प्रोटेस्ट किए हैं प्रीवियसली, ठीक है। तो अब जो है जैसे कि एक बार तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल में क्या हो सकता है, मेमोरेंडम देने के बाद वो पहला स्टेप हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड प्लीज, ठीक है। द सेकंड स्टेप इसमें लिया ये जा सकता है कि ठीक है, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल स्पेसेस में जो है हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दिल्ली के आसपास लोग हैं वो कोशिश करें कि मिनिस्ट्रीज तक पहुंचे, वो कोशिश करें कि एनबीसी एफडीसी आए, ठीक है, और वहां पर भी जाकर के अपनी बातों को रखें, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि जागरूकता फैलेगी तो उससे बात बनेगी, मगर अल्टीमेटली हम लोगों को, ठीक है, पिन पॉइंट होकर के कार्य करना होगा, क्योंकि हम लोग जो है मतलब अपनी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हर जगह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह करने की जरूरत भी नहीं है। एक अगर जैसे आप, जैसे सब ग्रुप है, अगर सपोज करो हमारा एक ग्रुप है, आप जो मिनिस्ट्री है और जो फंडिंग एजेंसी के जो आप बोल रहे हैं कि उनसे कनेक्ट करेंगे, आप वो पैरेलल माध्यम रखो, उसमें तो करना ही करना है।
वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि उस पर और प्रेशर कैसे बनाया जाए मिनिस्ट्री पर कि जिससे वो जल्दी से आपको अपॉइंटमेंट दे मिलने का। तो एक ये जो जैसे लड़ाई अगर लड़ते हैं तो उसको चारों तरफ से वो एक होता है ना कि भाई चारों तरफ से तैयार हो। एक माध्यम तो आप जो बता रहे मैं हैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो सकता है, बट द फ्रूटफुल वे आई एम सेइंग दैट कि जो फाइनल और या फ्रूटफुल वे हो डेफिनेटली, और सकता है। उसको 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 सही वे में देखो, एक कंक्लूजन पे तो आना ही पड़ेगा कि हम इसको अगर हम सफर कर रहे हैं तो इसको कैसे इनिशिएट किया जाए। अगर ये अब यहाँ बात आ रही है कि ये सारी बातें हमारी नॉलेज में है, आपका बहुत एक्सपर्टीज इसमें अच्छे से काम किया, दैट इज गुड। और अब पूरे ओबीसी कम्युनिटी जो फेलोशिप उनको मोबिलाइज किया है, दैट इज गुड। बट एक इनिशिएटिव वे में एक प्रेशर कैसे बनाया जाए गवर्नमेंट पे, और फ्यूचर के लिए कैसे उनसे अगर मीटिंग होती तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कैसे बात की जाए। तो अभी ये जो तैयारी हम कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में या ट्विटर के माध्यम से, जो भी हमारे माध्यम हो सकते हैं कि हम गवर्नमेंट पर या फंड जो लोग हैं उन पर कैसे प्रेशर बना के वो हमारी बात को सुने। हाँ, तो ये सही बात है कि हमें जो नयन भाई ने भी बोला है और लालजी सर ने भी बोला है कि ये सारी चीजें जो है पैरेलली करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई एक सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। तो पैरेलली करेंगे तो जो सारी चीजें है वो अगर इंटरलिंक्ड जैसे नयन भाई नामदेव भाई, जैसे नयन भाई और आप सपोज करो, और ऋतुराज भाई जैसे आप सपोज करो मिनिस्ट्री से मिलने जा रहे हैं, अगर हर यूनिवर्सिटी के पास का जो सपोज कर सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, अगर वो डेटा लेके जाएंगे तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी फायदा रहेगा। वैसे आपके पास डेटा होगा, होगा उस डेटा चीज का। होगा। तो जैसे अगर सब सिग्नेचर कैंपेन जैसे एक चलाया लखनऊ यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र से कोई यूनिवर्सिटी, जब 50 यूनिवर्सिटी का एक सिग्नेचर कैंपेन आपके सोशल मीडिया पर आएगा तो मीडिया भी देखती है इसको। मीडिया नेशनल इशू कैसे बनेगा कि भाई स्कॉलर क्यों सफर कर रहे हैं। तो हमें कई तरह स्किल्स जो हमारे पास जो आइडिया है उसको अगर हम एक्सप्लोर करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो डेफिनेटली मीडिया इसको देखेगी और उस पर बात करेगी फिर। ये बात आपने सही कही। तो ये एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है क्योंकि इससे एक हमारे जो आगे की लड़ाई है उसमें कोऑर्डिनेशन भी अच्छे तरीके से आएगा। क्योंकि आज मतलब एक यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे तो उनमें एक थोड़ा काम करने के लिए भी एक उत्साह आएगा। क्योंकि और जो भी मीटिंग होना है वो आप ही लोग करेंगे, मीटिंग आप ही लोग जाओ, जैसे नारायण भाई नामदेव और भी आप 2-4-10 लोग जेएनयू से डीयू से सब लोग एक पूरा डेलीगेशन बना के जाओ 10 लोग कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इतने सालों से हम इस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। जैसे आपने 2020 से इसको टेकअप किया हुआ है कि तो आप स्टिल 2020 से अभी तक इस पे काम कर रहे हैं और इस पर फेलोशिप की बात करें। जैसे सरकार का क्या होता है कि 6 महीने की दे दी हम शांत हो गए, फिर 6 महीने बाद प्रॉब्लम आई फिर हम आ गए। तो हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी बार बार क्यों हम कल रोड पर ला रहे हैं, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अरे सरकार से हमारी डिमांड है कि भाई 5 साल के लिए खत्म करो, हम अपनी रिसर्च पे फोकस करें, लैब वर्क में काम करें। हम क्यों बार बार सड़कों पर सोशल मीडिया पर अननेसेसरी अपने आप को शो। जब फेलोशिप मिलना ही अनप्रेडिक्टेबल है तो रिसर्च किस तरह से प्लान करें। अभी कभी भी आप एनबीसी एफडीसी को मेल कीजिए, उनका एक ही रिप्लाई आएगा कि इतने डेट तक हमने दिसंबर के लिए रिक्वेस्ट डाल दिए और फंड आने के बाद 2-3 दिनों के बाद आपको फेलोशिप मिलेगी। मगर कब आएगा फंड ये नहीं मेंशन कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत। इवन सपोज करो नामदेव भाई, सपोज नहीं है। एक इशू ये भी है कि फंड एजेंसी कई जैसे हैं वो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगती है। अब रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको ये पता नहीं है कि रिपोर्ट आपकी एवेल्यूएट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, और फंड कब रिलीज होगा ये कोई आइडिया नहीं है। ना कोई डिजिटल पोर्टल ऐसा सिस्टम है कि आप अपनी फाइल को देख सकते हैं कि आपकी फाइल कहाँ पहुंची है, किस ऑफिस में। ई ऑफिस भी नहीं है। तो ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है आपके इस स्कीम में? तो अब कुछ नहीं है वैसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी ये सारी चीज डिमांड बहुत सारी है। पर आप अगर आपको लगता है कि भाई कौन सा रास्ता अच्छा हो सकता है अपने इशू को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, वो फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे हमारे अकॉर्डिंग। जी जी जी, आप वो तो हमने डिस्कस ही कर लिया। मगर नयन भाई की जो एक बात थी उसमें एक दूसरी बात ऐड करना चाहता हूँ एनएफओबीसी कम्युनिटी से,
जी जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। नयन भाई हर बार उधर जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि एक दिल्ली के आसपास भी पकड़े हम तो एक 30-40 NFOB स्कॉलर तो होंगे ही। तो वो जाने के लिए तैयार होंगे। तो जो अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे दिल्ली आने के लिए 2 दिन लगेंगे और वहां से रिटर्न आने के लिए 2 दिन। तो मुझे 1 दिन के लिए उधर आना पॉसिबल नहीं है। कभी प्रोटेस्ट होगी फ्यूचर में तो मैं आ सकता हूँ, मगर कुछ छोटा मोटा काम होगा तो मैं उधर नहीं आ सकता। तो उनके लिए कुछ हम फाइनेंशियल असिस्टेंट भी कर सकते हैं सबकी तरफ से। मतलब पहले भी किया होगा, मगर मैं जब से ज्वाइन हूँ वो बड़ा फाइनेंशियल इशू, वो फाइनेंशियल मैटर है, डेफिनेटली वी कैन कंट्रीब्यूट, इट्स नॉट अ बिग डील। डेफिनेटली अगर कोई बार बार मिनिस्ट्री में मीटिंग के लिए जा रहा है, दैट इज नॉट इशू, वो तो हम डेफिनेटली करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि जब वो दिल्ली में अगर प्रोटेस्ट की, जैसे अगर बात करने हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट की जब बात हुई, जब पूरे इंडिया में लोग इस पे तैयार हो जाए, एक कंसर्न बन जाए कि भाई हमारी बात हमने हर लेवल पर उठाई, सरकार फिर भी नहीं सुन रही, हमें इग्नोर कर रही है, देन वी कैन मूव इन द लास्ट स्टेज इन दिल्ली, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। और आप ही लोग लीड करो, ऐसा किसी के साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं है। हमारा मुद्दा है कि भाई हम अच्छे ढंग से साइंस कैसे करें, हमें डेली फंड कैसे मिले हर महीने, दैट इज आवर इशू। यस यस, तो वो भी इशू है। उसको कौन इनिशिएट कर रहा है? आप इनिशिएट कर रहे हो, आप लोग कर रहे हैं। हमारा वो विषय है ही नहीं। हमारा विषय है कि स्कॉलर को हर महीने फेलोशिप मिले, हम इस पे इसको कैसे इम्पैक्टफुली बनाएं, किस लेवल पे बनाएं, दैट इज आवर इशू। वी कैन वर्क ऑन टुगेदर इन कलेक्टिव वे। हाँ, वो तो है। तो जो कंक्लूजन है, मुझे लगता है कि जो नयन भाई ने भी बातें बताई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम कर रहे हैं अभी वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो नयन भाई कर रहे हैं उनको एक थोड़ा सपोर्ट, बैक सपोर्ट देने की चीज काम हो रहा है हमारी तरफ से। तो जो हम अभी कर सकते हैं, जो अपने यूनिवर्सिटी की लेवल पे काम बोला है, तो वो कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक वो अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली नयन भाई अगर विजिट कर रहे हैं दिल्ली और बार बार, नयन भाई आप किधर से हैं अभी? जी मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली में। हाँ। हाँ, तो दिल्ली में है तो आप तो लोकल में, मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो हाँ। लोकल में तो जो भी आपका असिस्टेंट होगा, जो भी खर्चा लगेगा, मतलब आपको विजिट करना है, ऑटो का किराया जो भी है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील। बट आप तो जेएनयू में, तो डेफिनेटली उसको इशू बन सकता है और अच्छे से मीडिया में भी हाईलाइटेड हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो बट ये है कि अभी अपने इस स्तर को कैसे किया जाए, इसको कैसे अच्छे ढंग से बनाया जाए, उस पे कंसर्न है हम लोग की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आगे इस पे कार्य करेंगे और जो भी आगे हो सकता है उस पे आगे किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मेमोरेंडम्स को दे करके देख लें कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग को एक कनेक्ट करके देख लें। उसके बाद वी विल फर्दर डिसाइड कि व्हाट आर द स्टेप्स, हाउ हम लोग प्रोसीड करें। डेफिनेटली वी कैन डू द अनदर मीटिंग आल्सो आफ्टर दैट, कि अगर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। लेकिन मेरा जैसे है कि जैसे छोटा मोटा, जैसे हम पोस्टर डिजाइन करें, कहीं कुछ करें, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लें, मिनिस्ट्री को ईमेल तो जा ही रहे हैं, उनको मेल करें और अपने लोगों को कनेक्ट करें। तो एक इम्पैक्टफुल या प्रेशर कैसे क्रिएट करें, इस पे भी थोड़ा पैरेलल में काम चलता रहेगा तो और अच्छा रहेगा। मतलब मेमोरेंडम भी जो दे रहे हैं हम मिनिस्ट्री को, उसको भी एक सपोर्ट मिलेगा, बैक सपोर्ट मिलेगा इस चीजों की वजह से, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी इवन मीडिया अभी वाले मुझसे भी पूछते हैं, मीडिया वाले मुझसे भी बोलते हैं कि भाई आप जो स्कॉलर हैं, तो मैं आपका नंबर दे दूंगा कि भाई ये इनसे बात कर लो, ये मुद्दे को और अच्छी तरह बता दें, जो भी मीडिया वाले बात करते हैं। तो यही सब चीजें हैं कि अगर इसको सही ढंग से और हम कलेक्टिव वे में करेंगे तो डेफिनेटली सरकार को सुनना ही पड़ेगा। उससे पहले भी कई सारे स्कॉलर ने आवाज उठी, सरकार को सुनना पड़ा। बजट की बात करें तो बजट उनका मैटर है, अगर वो स्कॉलर को फेलोशिप दे रहे हैं तो उस बारे में मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ कि भाई जब वो स्कीम निकाल रहे हैं, उनको सब पॉलिसी मेकर बैठे हैं, उनको सब मालूम है, सारी चीजें कर रहे हैं, सब पता है, तो उनको फेलोशिप देने में क्यों डिले कर रहे हैं, ये उनका मैटर। ये हम उनको बात बोल सकते हैं कि क्यों आप डिले कर रहे हैं, और इसको रेगुलराइज करिए। हाँ, नयन भाई ने जैसे बोला है, तो कल तो
बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नयन भाई ऑफिसर से शायद कल कनेक्ट हो सकते, तो एक कल भी हमें अच्छी क्लियरिटी आ सकती है, तो वो भी देखेंगे हम, तो वो पैरेलल चलता ठीक है, रहेगा। कल ग्रुप में तो है ही नयन भाई, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं कि भाई ये आज हमारी बात हुई है, इस नहीं बात को नहीं, लेकर हम लोग। हाँ नयन भाई हर बार जो रिपोर्ट आती है ग्रुप में सारे लोगों के साथ साझा करते हैं, उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, फिर क्लियर अगर हो जाए। उसमें ग्रुप में आएगी तो उसके अकॉर्डिंग इवन, तो अभी हम हम्म। एक बेसिक लेवल पे एक छोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं कि हर इंस्टीट्यूट में अपने स्कॉलर के ओबीसी जो फेलोशिप ले रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करें, सिग्नेचर कैंपेन तो करते रहे, बाकी नयन भाई एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, दैट वो भी चलता रहेगा, साथ साथ में ये भी करें और फिर उसके हाँ स्टेप हाँ, बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। वो तो है, वो तो है। तो अभी इसको बाइंड अप करते हैं और हम लोग एक कंसर्न ये है कि अभी इनकी जो बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, कल तक देखते हैं, उसके हाँ बाद हाँ हाँ, वो उनकी बात हो जाती है, क्या उनका उनके अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद जो भी है वो शेयर करेंगे, देन फर्दर स्टेप में हम इंस्टीट्यूट लेवल पर अपना एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, जो भी ओबीसी स्कॉलर है उनके साथ बात करते हैं कि भाई इन फ्यूचर में अगर हम लोग छोटा मोटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट वाइज करते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइज करते हैं, तो उसमें सब लोग आए, क्योंकि इसमें सबका बेनिफिट है। दूसरा है कि लोकल मीडिया है उनके साथ भी बात करें, उनके साथ भी अपनी बात रखें कि ऐसा ऐसा हो रहा, लोकल जो एमपीज हैं उनको भी हम लेटर दें, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात को मिनिस्ट्री में या फिर पार्लियामेंट में उठवाएं, जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल जो भी एमपीज हैं उनके साथ भी कंसर्न करें, उनके साथ भी कनेक्टेड हों, तो ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं। जनरली हमारा फोकस है कि भाई हमारी बात कैसे मिनिस्ट्री तक पहुंचे और मिनिस्ट्री हमारी बात सुने। हाँ हाँ, यही हमारा कंसर्न है। तो अभी तक जो जो डिस्कशन हुआ है, तो क्या नामदेव भाई आप इसको थोड़ा ब्रीफ में कर सकते हैं कि कैसे कैसे रोड मैप है, बाकी मैं एक रोड मैप शेयर कर दूंगा ग्रुप में कि क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो एक नेक्स्ट संडे हम एक फिर मीटिंग कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि कहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं, क्या कंक्लूजन आया है अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव से, प्लस हमारा पर्सनल जो हम लोग एक्टिविटी करें, क्योंकि हमें थोड़ा आवाज बहुत नहीं आ एक्टिव रहा तो है काम। हेलो, लालजी भाई, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो लालजी सर, आपका वॉइस ब्रेक हो चुका है पूरी तरह से। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, तो हाँ, तो बोलिए वही क्या है बोल कि रहे थे। अभी वही है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर सिग्नेचर कैंपेन लोकल एमपीज के साथ और जो हमारे स्कॉलर हैं उनके साथ बात करके, अगर नेक्स्ट वीक फिर एक मीटिंग करते हैं कि नारायण भाई का एडमिनिस्ट्रेटिव क्या अप्रोच रहा, क्या उनकी तरफ से रिप्लाई रहा, वो भी डिस्कस करके फिर फर्दर इसको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, अगर रियली वी आर थिंकिंग कि वो जो हमारी सॉल्यूशन है वो मिलना चाहिए, क्योंकि बिना, हाँ मुझे तो नहीं लगता बिना आवाज उठाए ठीक है, फिर या तो शांत हो जाए कि भाई जब सरकार की मर्जी होगी तब दे देगी, तो फिर अपना उसके अकॉर्डिंग काम करें, दूसरा है कि अपनी बात को रखते रहो और रखना भी चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर क्या पता वो 5 साल का जो डिमांड है कि भाई 5 साल के लिए फंड ब्लॉक करे, तो इन फ्यूचर में जो जूनियर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हम लोग एफर्ट देंगे तो डेफिनेटली जूनियर्स जो आएंगे इस स्कीम में, जो भी लोग आएंगे उनको और बेनिफिट रहेगा, रेगुलराइजेशन हो फेलोशिप, तो हम अपनी बात, हम अपना रिसर्च में फोकस कर पाएंगे। वो तो है, वो तो है। 5 साल के मतलब ईयरली भी किया तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईयरली भी आए तो भी बेस्ट है, इट्स नॉट ए बैड। हाँ, तो दिक्कत तो हमारा यहाँ ईयरली पे ही है, क्योंकि ईयरली कर दिया होता उन्होंने तो ये दिक्कत ही नहीं आती, बजट रीअलोकेशन की दिक्कत ही नहीं आती, बिल्कुल तो ये प्रॉब्लम। और वो उस मुद्दे को लेके उतने सेंसिटिव भी नहीं है, क्योंकि वो फरवरी बोल रहे हैं, मतलब एक 3-4 महीने का पीरियड में रिसर्च स्कॉलर क्या करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। तो अभी ये जो मूवमेंट है हम चालू रखेंगे। अभी मैं सारे जो स्कॉलर्स है उनकी तरफ से एरसा का शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी इस जो कैंपेन है उसमें बहुत एफर्ट्स लिए हैं, तो उसके लिए हमारे सब की तरफ से आपके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखो यार, हम लोगों ने, मैंने भी पेन को झेला है, तो हमारा स्कॉलर एसोसिएशन का यही मोटिव है कि भाई जो हमारे देश में स्कॉलर है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम लाइन में हो, और हम
उनको कैसे उनके वेलफेयर के लिए उनकी बात को कैसे मिनिस्ट्री मंत्रालय तक सपोर्ट में कर सकें, आप लोगों के सहयोग में कैसे हेल्प कर सकें, दैट इज अवर मोटो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हमारा भाई वो कंपटीशन है, किसी के साथ हमारा कोई वो है, दैट इज नॉट अवर थिंग। हमारा तो एक ही मोटिव है, चाहिए लीडरशिप की बात भी नहीं है कि हम लीडर बने, कौन लीडर बने, स्कॉलर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, दैट इज अवर मोटो। उनको वेलफेयर के लिए उनका जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे एक फेलोशिप नहीं है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे हजारों इश्यूज हैं, छोटे छोटे इशू, कोई लैब का इशू या पीआई का इशू है, कितने इशूज आते हैं हमारे पास कि भाई हमारी पीएचडी नहीं हो पा रही, हमारा पीआई हमें टॉर्चर कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसे इश्यूज आए हैं जो हमने काम किया है, और उन काम को लेकर आगे भी यही है कि भाई इसको मिनिस्ट्री के सिर्फ एक ही है कि आप एक ऐसा कोई मीटिंग, ऐसा कोई कमेटी बनाओ जो पूरे इंडिया के स्कॉलर के साथ कनेक्टेड हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, और एक देश में एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे बन सके कि हम अच्छे से रिसर्च कर सकें। हम खाली सोशल मीडिया पे हमारे मिनिस्ट्री और फंडिंग एजेंसी के सेक्रेटरी लोग बोलते रहते हैं इनोवेटिव रिसर्च ये कर रहे हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है वो जानते हुए इग्नोर करते हैं। वो तो है। तो हम अब भी ठीक है, फिर इसको बाइंड अप करते हैं, कनेक्ट जो भी अभी डिस्कस किया उसको रोड मैप बना के हम शेयर करते हैं ग्रुप में, देन फर्दर उस पर वर्क करते हैं। हमारी जब मीटिंग होती है तो ये इनिशिएटिव, मतलब ये सारी चीजें पवन भाई शेयर करते हैं, तो रोल हमने डिवाइड कर लिया है। तो मैं पवन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी तक का हमारा डिस्कशन हुआ है उसको ब्रीफ में दोनों लैंग्वेज में ग्रुप पे आप भेज दीजिए। पवन भाई, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो पवन भाई। हाँ, शायद उनका नेटवर्क टेक्निकल इशू होगा, मैं उनको कॉल कोई बात नहीं, इसको शेयर कर देंगे, और रोड मैप बना के आप लोग भी और हम लोग भी ये सब लोग मिलके ग्रुप में शेयर कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। और नामदेव भाई, आपने देखो, हमें ये पता था कि भाई ओबीसी का इशू चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपका मेल आया तो हमने सोचा कि भाई इस पर एक डिस्कशन किया जाए, बात की जाए। और मेरा एक कंसर्न है कि हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि स्कॉलर, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई भी है, जिसको फेलोशिप नहीं मिल रही, जिसकी कोई इशू आ रहा है, उसको वो चीज होनी चाहिए, वो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए। हाँ, वो तो है, वो है। क्योंकि हमें भी किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मगर हमारे साथ के जो लोग हैं, अभी मेरे साथ यूजीसी नेट वाली एक छात्र है और एनएपीएससी वाली भी छात्र है, तो उन दोनों की फेलोशिप है जो रेगुलर मोड पे मिलती है, तो थोड़ा दिक्कत हमें ही आता है। तो थोड़ा लगना तो जायज है, क्योंकि एनएपीएससी और एनएपओबीसी एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आते, तो मिनिस्ट्री तो डिस्क्रिमिनेशन करती है, क्योंकि उसका रीजन तो मुझे मालूम नहीं है, वो शायद मिनिस्ट्री को ही पता हो। डिस्क्रिमिनेशन करती है वो, ठीक है, हम कास्ट वाइज सोच रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि कैसे उस चीज को किया जाए, बात कैसे रखी जाए। चलो ठीक है, इसको हम बाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी फिर काफी चर्चा हो गई है। बाकी हम अपना जो भी एजेंडा है, जो भी वर्क है, उसको हम एक रोड मैप बना के ग्रुप में शेयर करते हैं, देन फिर कनेक्ट होते हैं, नेक्स्ट वीक फिर कनेक्ट होंगे, ठीक है। हाँ, तो कल हम ट्विटर कैंपेन करेंगे या नहीं, वो आप नहीं, वो तो कंटिन्यू रहेगा, वो उसका तो कोई, वो तो चलता रहेगा। ऐसा करेंगे, वीकली ट्विटर कैंपेन करेंगे हर डे, या तो फिर एक काम करेंगे कि अल्टरनेट डे करेंगे, एक दिन छोड़ के करेंगे, या फिर वीकली कर लेंगे, देख लेंगे जिससे इम्पैक्टफुल बना के कर लेंगे इसको, क्योंकि अभी एक मीटिंग और है तो उस पर भी बात करते हैं अभी। क्योंकि अभी आपको एक बात बता दूं, AICTE है एक स्कॉल जो फेलोशिप देती है इंजीनियरिंग, वो लोग भी सफर कर रहे हैं, उनकी फेलोशिप, वो लोगों के साथ ये मीटिंग है अभी। हाँ ठीक है लालजी भाई, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you everyone who joined the meeting and discussed the wonderfully, and hope we will connect again and we will work together for our welfare. Thank you, bhai. Thank you. Thank you.